Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 9, observing 2 theory course. So, in our previous 7 lectures, we have discussed the curves chapter, the hydrographic survey, and the construction survey. Now, in this lecture, we will start our new chapter, which is about the field astronomy. So, astronomy is a general subject, yeah, the general field of natural sciences which concern with the celestial objects, mean including the solar system, galactic and extragalactic system. See, if we are only focusing in our solar system, so at the center we have sun, and then around the sun we have different we can say that planets or different stars, like अर्थ जो है उसमें one of the object है. So if we are studying about these celestial bodies, okay, these are called the celestial bodies. Yeah, suppose if we are looking to the sky at night time, तो हमें different stars नजर आते हैं, moon नजर आ रहा होता है, या other planets हैं पूरे system में. So all of these objects are called the celestial bodies, or these are called the heavenly bodies. So if we are studying about those celestial bodies or those heavenly bodies, it is called astronomy. Specifically in engineering surveying, in field astronomy, we are dealing with the determination of the relative position of celestial bodies by taking the astronomical observation. Okay, remember जब भी हम सर्वे की definitions करते हैं, so in survey we are defining the relative position of different points on the surface of Earth. Similarly, if we are interested in the determinations of the relative position of celestial bodies, of heavenly bodies, या suppose अगर हम sun का position find कर रहे हैं with respect to the earth, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक जगह से हम सन की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, मून की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, या किसी भी स्टार की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, so that will be a kind of relative position of that body with respect to the earth. So that is called the field astronomy, in which we are dealing with the determination of the relative position of the celestial bodies. And we have to take some astronomical observation, which we will discuss in our coming slides. And remember, the basic purpose of field astronomy is to determine the location, yeah, to determine the position and direction of any line on the surface of the earth. Okay, yeah, to determine the location or position and direction of any celestial body. For example, moon है हमारे पास, sun है, star है, या other planets हैं. So उनकी जब हम position find करते हैं with respect to the earth surface, वो हमारे पास as a reference point होगा, as a control point होगा, as a observatory point होगा. तो अगर अर्थ से हम किसी भी celestial body की position find करते हैं, that will be called the field astronomy. Okay. So in this chapter, first we will have some introductory terminologies, जो terms हम use करते हैं या जो word use करते हैं field astronomy है, पहले उसको हम थोड़ा सा discuss करेंगे. Then we will have the field astronomy, उसकी जो we can say that जो different terms है या उसमें जो mathematical calculations involved हैं, उसको थोड़ा सा discuss करेंगे. And then we will discuss the position of any body with respect to the earth. ठीक है, कि अगर कोई हमारे पास सपोज यहाँ पे एक अर्थ, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे एक स्टार है या सन है या मून है
कोई भी प्लैनेट है तो उसका पोजीशन हम किस तरह स्पेसिफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो before going into the detailed discussion of the field astronomy or position of different celestial bodies with respect to the earth, हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले उसको डिस्कस करेंगे। See, before starting again going into the terminology, अब दो टर्म माइंड में रखिए कि एक जो है स्पेसिफिकली हम अर्थ को कंसिडर करते हैं एज अ स्फीयर। ठीक है, अर्थ को हम एज अ स्फीयर कंसिडर करते हैं। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर जो है दैट इज वी कैन से दैट स्फीयर जो है इट इज अ सॉलिड which is bounded by a surface, and each and every point on the surface of the sphere will be equidistant from a certain reference point जिसको हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, स्फीयर क्या है? वो एक सरफेस है, वो एक सॉलिड बाउंडेड सरफेस है जिसकी हर एक पॉइंट जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है हमारे पास? उसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, वो इक्वी डिस्टेंस होंगे, और इसको फिर हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द स्फीयर कहते हैं। ठीक है, एंड नाउ यहां पे दो केसेस होंगे हमारे पास। या तो हम सिर्फ अर्थ कंसिडर करेंगे कि अर्थ जो है ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहां अर्थ को हम एज अ सेंटर पॉइंट कंसिडर करेंगे, और अर्थ की अराउंड जितनी भी बॉडीज हैं उनको हम एज अ सरफेस ऑफ द स्फीयर कंसिडर करेंगे। ठीक है, दो केसेस हैं। बिफोर गोइंग इनटू द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आप लोग माइंड में रखें कि या हम सिर्फ अर्थ को एज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फिर सेंटर ऑफ द अर्थ जो है दैट विल बी टेकन एज अ सेंटर ऑफ द स्फीयर, और या हम अर्थ को एज अ सेंटर पॉइंट कंसिडर करेंगे, और जो भी हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज हैं या हीवनली बॉडीज हैं उनको हम एज अ स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहां पे देखें ना, ये हमारे पास क्या है? इसका जो सेंटर है दैट इज अर्थ, और इसका जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसमें हम कंसिडर करेंगे कि ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आर ऑन दिस सरफेस। ठीक है, सो दो कंडीशन है, आगे फिर भी हम डिटेल से उसके ऊपर बात करेंगे। सो जो फर्स्ट टर्म है दैट इज द celestial sphere. So celestial sphere is an imaginary sphere upon the surface of which all the stars in the sky appear to be stored to an observer station at its center. Now see, अगर हम यहां पे है, we are on the earth surface, so ये पूरा अर्थ जो है ये एज अ सेंटर पॉइंट कंसिडर होगा, और अर्थ की अराउंड जितनी भी स्टार्स हैं, जितनी भी हीवनली बॉडीज हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे कि वो एक सर्कुलर एक स्फेरिकल सरफेस है अराउंड द अर्थ। जितनी भी हीवनली बॉडीज हैं, जितनी भी स्टार्स हैं, मून्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सन है, उनको हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो इस स्फेरिकल बॉडी के सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो इफ वी कंसिडर ऑल ऑफ दोज heavenly bodies as a surface of the sphere, and if we consider the center of that sphere, मीन अगर अर्थ को हम उस सरफेस का सेंटर कंसिडर कर दें, और जितनी भी हीवनली बॉडीज हैं उनको हम एक स्फेरिकल सरफेस में कंसिडर कर लें, दैट इज कॉल्ड द सेलेस्टियल स्फीयर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। मीन जिस तरह जब हम नाइट के टाइम पे ऊपर देखते हैं, सो वी आर सीइंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स,
ऑफ डिफरेंट डिग्री ऑफ ब्रिलियंसी, ठीक है, तो वी आर कंसिडरिंग देम कि ये एक इमेजिनरी स्फेयर का सरफेस है, ठीक है। अर्थ से उन स्टार्स को हम ये इमेजिन करते हैं कि ये एक स्फेयर की सरफेस है अराउंड द अर्थ, और अर्थ जो है वो उस स्फेयर का हम सेंटर कंसिडर करते हैं एट एन इनफाइनाइट रेडियस। सो द सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज का जो स्पेयर है, जो सरफेस है, अर्थ उस हम उस अर्थ को उसका सेंटर पॉइंट कंसिडर करते हैं, और ये जो स्पेयर है दैट इज कॉल्ड द सेलेस्टियल स्पेयर, ठीक है। सो जितने भी मीन जो सन है, स्टार्स हैं, मून है या प्लैनेट्स हैं, that will all of those bodies will be considered on the surface of this sphere, and this sphere is called the celestial sphere, ठीक है। और अर्थ जो है, अर्थ उसका सेंटर पॉइंट होगा। अच्छा, फिर हमारे पास एक टर्म होता है जीनत पॉइंट, that is the intersection of a vertical line through the observer station with the upper portion of the celestial sphere. Now see, ये जो है ये हमारे पास around the earth जो heavenly bodies का surface है, इसको हम celestial sphere कहेंगे। अर्थ जो है ये सेंटर पॉइंट है इस celestial sphere का। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे एक ऑब्जर्वर है, यहां पे एक ऑब्जर्वर है, तो along the center of the earth, इस तरह अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर सेलेस्टियल स्फेयर की तरफ आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो ये सेलेस्टियल स्फेयर को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द जीनत पॉइंट। और ये जो लाइन होता है दैट इज कॉल्ड द जीनत लाइन। सो जीनत पॉइंट जो है, इट इज द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फेयर इमीडिएटली अबव द ऑब्जर्वर स्टेशन। मीन अगर आप अर्थ सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आप हैं, तो आप एग्जैक्टली अपनी हेड के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम कर लें, और वो लाइन अगर हम एक्सटेंड करेंगे, सो इट विल intersect the celestial sphere at a specific point, so that point will be called the zenith point, and this line will be called the zenith line. Okay, so the point on celestial sphere vertically above the observer is called zenith point, या the point immediately above the observer station, ठीक है। सपोज अब देखें, अगर ऑब्जर्वर यहां पे है, तो ऑब्जर्वर यहां पे है, तो एग्जैक्टली ऑब्जर्वर के पॉइंट से परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो वो सेलेस्टियल स्फेयर को यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, सो दैट विल बी कॉल्ड द जीनत पॉइंट, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास है नेदर पॉइंट। सो दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन थ्रू द ऑब्जर्वर स्टेशन विद द लोअर पोर्शन ऑफ द सेलेस्टियल स्फेयर। अब देखें, ये हमारे पास अर्थ है, which is the center point, या which is the center of the celestial sphere, और around this earth ये जो सरफेस है, spherical surface है, जिसपे हम assume करते हैं कि all celestial bodies हैं, that is called the celestial sphere. Now suppose यहां पे ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर से exactly perpendicular to the earth अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो सेलेस्टियल स्फेयर को यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वी कॉल्ड इट जीनत पॉइंट। और अगर इसी लाइन को हम लोअर की तरफ एक्सटेंड कर लें, सो इट विल इंटरसेक्ट द सेलेस्टियल स्फेयर हियर, दैट इज कॉल्ड द नेदर पॉइंट। सो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीनत नेदर लाइन, ठीक है। अगेन यहां पे देखें, अगर ए ऑब्जर्वर है, सो ऑब्जर्वर की हेड की ऊपर एक इमेजिनरी लाइन आप एज्यूम कर लें टुवर्ड द सेलेस्टियल स्फेयर, जहां पे सेलेस्टियल स्फेयर इंटरसेक्ट होगा वो जीनत पॉइंट होगा।
और नीचे की तरफ आप लाइन ड्रॉ कर लें कि लोअर पॉइंट ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर को इंटरसेक्ट कर सकें, दैट इज कॉल्ड द नेदर पॉइंट, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड ZN line, means zenith nether line. Okay, so the point on celestial sphere exactly below the observer position is called nether point. Yeah, the point immediately vertically below the observer station, ये हमारे पास nether point होगा. And the line which is joining the zenith point and nether point, that is called the ZN line, means zenith nether line इसको कहते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं सेलेस्टियल हॉरिजन. अब देखें, दिस इज द ZN लाइन which is passing from the center of the celestial sphere. Remember, अर्थ जो है पूरी सेलेस्टियल स्फीयर में, अर्थ हमारे पास क्या होगा, वो सेंटर पॉइंट होगा. मीन एक पॉइंट हम उसको कंसिडर करेंगे, उसको हम सेलेस्टियल स्फीयर का सेंटर पॉइंट कंसिडर करेंगे. तो अब ये ZN लाइन जो है ये सेलेस्टियल स्फीयर की सेंटर से पास हो रही है. ठीक है. अगर इस लाइन को परपेंडिकुलर हम अराउंड दी सेलेस्टियल स्फीयर एक सर्कल ड्रॉ कर लें, अराउंड दी सेलेस्टियल स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू दी ZN लाइन, इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लें, दैट इज कॉल्ड दी celestial horizon, yeah, that is called the true horizon, or that is called the rational horizon. And that is the great circle. Great circle mean कि इस लाइन को आप जो परपेंडिकुलर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं अराउंड द, होगा वो अर्थ की सेंटर के बराबर. रिमेंबर, ये पॉइंट याद रखें. ठीक है. मीन सेलेस्टियल हॉरिजन का जो सेंटर पॉइंट है वो सेलेस्टियल स्फीयर की सेंटर पॉइंट का मीन सेम होगा. सेलेस्टियल स्फीयर का सेंटर और ये जो ग्रेट सर्कल है इसका सेंटर ये सेम होगा. ठीक है. सो द सेलेस्टियल हॉरिजन विल बी एट राइट एंगल टू द zenith nether line. Okay, so the great circle which is perpendicular to the ZN line on the celestial sphere is called celestial horizon. ठीक है. अगेन देखें, अब सपोज अगर यहां पे ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर की ऊपर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर ले, सो इट विल इंटरसेक्ट द सेलेस्टियल स्फीयर एट दिस पॉइंट, दैट विल बी द ज़ीनथ पॉइंट. अगर इसको हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लें, सो सेलेस्टियल स्फीयर को यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड द नेदर पॉइंट. और ये जो लाइन है दैट इज द ZN लाइन. नाउ ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सेलेस्टियल स्फीयर. अब इस स्फीयर के अराउंड हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं which is perpendicular to the ZN line. So this great circle around the celestial sphere is called celestial horizon. या that is called the true horizon, या that is called the rational horizon. ठीक है. एक हमारे पास है सेंसिबल हॉरिजन. अब देखें, यहां पे ऑब्जर्वर है, दिस इज द ज़ीनथ लाइन, नीचे की तरफ ये नेदर लाइन है. ZN लाइन को परपेंडिकुलर अराउंड द सेलेस्टियल स्फीयर ये सेलेस्टियल हॉरिजन है. एंड सेलेस्टियल हॉरिजन जो है ये ग्रेट सर्कल होगा. ग्रेट सर्कल मीन द रेडियस ऑफ द सेलेस्टियल हॉरिजन will be equal to the radius of the celestial sphere. So that's why it is called the great circle. Now sensible horizon जो है, अगर around the celestial sphere आप इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लें जिसका सेंटर पॉइंट क्या हो, पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर हो. मीन ऑब्जर्वर जो है ना अर्थ सरफेस के ऊपर, अगर वो आप सर्कल का सेंटर पॉइंट ले लें और सेलेस्टियल स्फीयर की अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर लें, सो दैट विल बी कॉल्ड सेंसिबल हॉरिजन. आल्सो वी कैन से दैट सेंसिबल हॉरिजन जो है वो अर्थ को टेंजेंट होगा एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर.
मीन जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है ना, उस पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर करके सेलेस्टियल स्फीयर के अराउंड एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर ले। मीन देट विल बी स्मॉल सर्कल, बिकॉज इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेलेस्टियल स्फीयर की सेंटर से स्मॉलर है। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ स्मॉलर सर्कल हैविंग द सेंटर equal to the point of observer. So sensible horizon is the circle in which a plane is tangent to the earth's surface and passing through the point of observation and intersect the celestial sphere. मीन सेलेस्टियल स्फीयर की अराउंड आप इस तरह सर्कल ड्रॉ कर लें जिसका सेंटर ऑब्जर्वर पॉइंट हो, सो दैट विल बी द सेंसिबल हॉरिजन, या दैट इज अ सर्कल व्हिच इज पैरेलल टू द सेलेस्टियल हॉरिजन। देखिए सेंसिबल सर्कल जो है या सेंसिबल हॉरिजन जो है ये सेलेस्टियल हॉरिजन को पैरेलल होगा और जेड एन लाइन को परपेंडिकुलर होगा, और इसका जो रेडियस है वो ऑब्जर्वर का जो पॉइंट है दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सेंसिबल हॉरिजन, और सेलेस्टियल हॉरिजन का जो सेंटर है वो सेलेस्टियल स्फीयर का सेंटर के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास आ जाते हैं सेलेस्टियल इक्वेटर। नाउ सी एज वी नो दैट कि हमारे पास एक एक्सिस है जिसके अराउंड अर्थ रोटेशन करते हैं, which is called the axis of rotation, mean axis about which the earth rotates. This axis intersect the earth's surface at 2 points. Remember एक zenith nether line है, ये फिक्स नहीं होगा, that will be depend on the position of observer. Suppose अगर ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर यहां पे एग्जैक्टली ऊपर की तरफ आप एक लाइन ड्रॉ कर ले, ये जीनत लाइन होगा, नीचे लाइन एक्सटेंड कर ले, ये नेदर लाइन पॉइंट होगा। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहां पे है तो ये जीनत होगा और नीचे की तरफ ये नेदर होगा। ठीक है, सो द जीनत नेदर लाइन जो है ये फिक्स नहीं होता, दैट इज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अच्छा, एक्सिस ऑफ द अर्थ जो है ये हमारे पास फिक्स है जिसके अराउंड अर्थ रोटेशन करते हैं ना। ठीक है, सो अ लाइन अबाउट विच द अर्थ रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस जो है ये अर्थ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, विच वी कॉल्ड द नॉर्थ पोल, और इसको हम साउथ पोल कहते हैं। अब इस एक्सिस ऑफ द अर्थ को अगर हम एक्सटेंड कर लें, सो इट विल इंटरसेक्ट the celestial sphere at this point, so that is called the north celestial pole. और इस एक्सिस को अगर नीचे की तरफ हम एक्सटेंड कर लें, इट इज कॉल्ड दी साउथ सेलेस्टियल पोल। एक नॉर्थ सेलेस्टियल पोल हो गया, एक साउथ सेलेस्टियल पोल हो गया। ठीक है, और ये जो पूरा लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, या इसको नॉर्थ साउथ लाइन कहते हैं। ठीक है, नाउ ये सेलेस्टियल स्फीयर के अराउंड अगर हम ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें विच इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्थ साउथ लाइन, इट इज कॉल्ड सेलेस्टियल इक्वेटर। और ये जो है ये फिक्स होगा, ये एक ही होगा, बिकॉज अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा ना, एक ही एक्सिस है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होते हैं, सो ये जो एक्सिस ऑफ अर्थ है ये फिक्स होगा। अब इस एक्सिस को परपेंडिकुलर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें अराउंड द सेलेस्टियल स्फीयर, इट विल बी कॉल्ड द सेलेस्टियल इक्वेटर। एंड अगेन सेलेस्टियल इक्वेटर जो है ये ग्रेट सर्कल होगा, मीन द रेडियस ऑफ द सेलेस्टियल इक्वेटर will be equal to the radius of the celestial sphere. So the great circle whose plane या whose surface is perpendicular to the axis of rotation, that is called the celestial equator, या the great circle at right angle to the axis of rotation. Mean axis of rotation को perpendicularly आप एक circle draw कर लें around the celestial sphere, it will be called celestial equator. ठीक है, अच्छा जी,
एक हमारे पास है टेरेस्ट्रियल इक्वेटर। देखिए, जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास दो केसेस होते हैं, या हम सिर्फ अर्थ को कंसिडर करते हैं एज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और या हम पूरी स्टार्स को एज अ स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करते हैं। अर्थ उसका सेंटर पॉइंट होता है। यहां पे देखें, मीन ये जो ब्लू स्पेयर है ना, ये हमारे पास सेलेस्टियल स्पेयर है। अर्थ जो है इसका सेंटर पॉइंट है। ये लाइन जो है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये हमारे पास नॉर्थ सेलेस्टियल पोल होगा, ये हमारे पास साउथ सेलेस्टियल पोल है। और ये जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन या नॉर्थ साउथ लाइन। और ये लाइन अर्थ को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट इज जस्ट कॉल्ड नॉर्थ पोल, और इसको साउथ पोल कहते हैं। ठीक है। अब इस एक्सिस को जब हम एक परपेंडिकुलर सर्कल ड्रॉ कर लें अराउंड द सेलेस्टियल स्फीयर, दैट इज कॉल्ड द सेलेस्टियल इक्वेटर। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब देखिए, अगर हम सिर्फ इस अर्थ को कंसिडर कर लें, अर्थ को हम कंसिडर कर लें, तो ये जो एक्सिस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड द साउथ पोल, और यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। नाउ अब अगर हम अराउंड द अर्थ एक सर्कल ड्रॉ कर लें, अराउंड द अर्थ एक सर्कल ड्रॉ कर लें परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, that will be called the terrestrial equator, या that will be called the polar equator। ठीक है। सी अगेन, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है। this is the point which is intersecting, this is the point on which the earth is intersected by the axis of rotation। नॉर्थ पोल इसको कहते हैं, इसको साउथ पोल कहते हैं। अब इस लाइन को परपेंडिकुलर अर्थ के अराउंड, रिमेंबर, अर्थ के अराउंड हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, ये टेरेस्ट्रियल इक्वेटर होगा। टेरेस्ट्रियल इक्वेटर का जो रेडियस है, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है। और ये एक्सिस सेलेस्टियल पोल को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये सेलेस्टियल नॉर्थ पोल है, ये सेलेस्टियल साउथ पोल है। अब अगर सेलेस्टियल स्फीयर के अराउंड हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, तो उसको सेलेस्टियल इक्वेटर कहते हैं। एक टेरेस्ट्रियल इक्वेटर है विच इज अराउंड द अर्थ, और एक सेलेस्टियल इक्वेटर है विच इज अराउंड द सेलेस्टियल स्फीयर। सो दैट इज द डिफरेंस। सो द ग्रेट सर्कल of the earth perpendicular to the axis of rotation is called the terrestrial equator। ठीक है। और ये जो लाइन है which we have discussed, इसको हम क्या कहते हैं, polar axis कहते हैं, या इसको हम polar diameter कहते हैं। that is the diameter about which the earth spin या the earth rotate, and the extremities of this axis are called the polar points। so एक हमारे पास नॉर्थ पोल होते हैं और एक साउथ पोल होता है। अगर उसको एक्सटेंड कर लें, तो ये सेलेस्टियल नॉर्थ पोल होगा और ये सेलेस्टियल साउथ पोल होगा। ठीक है। अच्छा, so these are the celestial poles। mean if the axis of rotation meet the celestial sphere at 2 points, mean axis को आप एक्सटेंड कर ले तो celestial sphere के साथ 2 पॉइंट्स पे मीट होगा। those points are called the pole points, or those points are called the celestial poles। okay, points where the earth axis meet with the celestial sphere, yeah, the points of intersection of axis of earth when produced with the celestial sphere are called the celestial poles। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, that is called the ecliptic। ठीक है। सी जो रियलिटी है उसमें क्या है, अर्थ जो है वो अराउंड द सन रिवॉल्व होता है, और 1 ईयर में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। नाउ वी आर ऑन द अर्थ सरफेस, तो अपेरेंटली
हमें क्या नजर आ रहा होता है? हमें ये नजर आ रहा होता है कि सन जो है वो मूव हो रहा है। रिमेंबर, अर्थ जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, सपोज ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। एक्चुअली रियलिटी में क्या हो रहा है? अर्थ जो है दैट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थ जो है वो अपने एक्सेस से रोटेशन कर रहा है। बट अपेरेंटली बिकॉज हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो हमें ये फील नहीं हो रहा कि हम मूव हो रहे हैं, बट हमें ये नजर आ रहा है कि सन ईस्ट के तरफ से वेस्ट के तरफ मूव हो रहा है। दैट इज द अपेरेंट मोमेंट ऑफ द सन। इसको डायरोनल मोशन भी कहते हैं। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है which is referring to the apparent motion of celestial object around the earth. मीन एक्चुअली अर्थ रोटेट हो रहा है, तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ हमें ये अपेरेंटली नजर आ रहा है कि सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट के तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, अब देखें, वी आर हियर ऑन द अर्थ सरफेस। अब अगर एक फिक्स पॉइंट से पूरी साल के लिए आप सन को ट्रेस कर लें, सो दिस विल बी द पाथ विच विल बी फॉलोड बाय द सन अराउंड द अर्थ। एक्चुअली रिमेंबर, रियलिटी में क्या है? अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, बट अपेरेंटली हमें क्या नजर आ रहा है? सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो आप देखें, अगर इस पॉइंट से सन आज आपको यहां पे नजर आ रहा है, कल आपको यहां पे नजर आएगा, डे आफ्टर टुमारो यहां पे नजर आएगा, 3 दिन बाद यहां पे नजर आएगा। ठीक है, तो मीन पूरी साल में हर दिन अगर आप सन का पोजीशन ऑब्जर्व कर लें तो आपके पास ये पाथ बन जाएगा। सो दैट इज द path which is traversed या the path which is followed by the sun on celestial sphere, so this path is called ecliptic। ठीक है, एंड सी सन कहां पे होगा? ये सेलेस्टियल स्पेयर के सरफेस पे होगा ना, मीन अर्थ के अराउंड जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? उनको हम कंसिडर करते हैं कि ये सेलेस्टियल स्पेयर की सरफेस है। सेलेस्टियल स्पेयर की सरफेस पे ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो अब सन जो है ये सेलेस्टियल स्पेयर के सरफेस पे आज यहां पे नजर आ रहा है, कल यहां पे नजर आ रहा है, डे आफ्टर टुमारो यहां पे नजर आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स को अगर आप ट्रेस कर लें और उसको आप ज्वाइन कर लें तो अराउंड दी सेलेस्टियल स्पेयर आपके पास ये एक ग्रेट सर्कल बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड द इक्लिप्टिक। सो द इक्लिप्टिक इज द ग्रेट सर्कल which the sun appear on the celestial sphere in 1 year। मीन पूरी साल में सन अर्थ से जिस पोजीशन पे अपीयर होता है, सो अगर उस पाथ को आप ट्रेस कर लें, दैट इज कॉल्ड द इक्लिप्टिक। अच्छा, नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक्सिस ऑफ द अर्थ है, इसको हम एक्सटेंड कर लें सेलेस्टियल स्पेयर की तरफ, तो ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल होगा। और इस लाइन को अगर हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लें एक्सिस को, तो ये साउथ सेलेस्टियल पोल होगा। नाउ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को अराउंड द स्पेयर अगर हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, दैट इज कॉल्ड द सेलेस्टियल इक्वेटर। सो अब देखें, सेलेस्टियल स्पेयर की ऊपर हमारे पास 2 ग्रेट सर्कल बन गए। एक क्या है? सेलेस्टियल इक्वेटर है, और एक क्या है? एक इक्लिप्टिक है। मीन एक द पाथ विच इज फॉलोड बाय द सन इन 1 ईयर। तो इक्लिप्टिक और सन के दरमियान ये जो एंगल है ये 23 डिग्री और 27 मिनट के बराबर होता है। मतलब यह है कि पूरी साल में
सन जो है वो इक्वेटर से 23 डिग्री और 27 मिनट पे अवे जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द obliquity of the ecliptic. ठीक है, ecliptic is the great circle which the sun appear on the celestial sphere within 1 year. और इक्लिप्टिक का जो प्लेन है ना, या इक्लिप्टिक जो का जो सर्कल है, ये सेलेस्टियल इक्वेटर के साथ कोइंसाइड नहीं है, मीन ये ओब्लिक्विटी पे है, और ये एंगल कितना है 23 डिग्री एंड 27 मिनट, या जनरली हम उसको 23.5 डिग्री लेते हैं। ठीक है, नाउ सी इक्लिप्टिक और इक्वेटर जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगेन देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। ठीक है, तो वो साइड जो है वो एक हेमिस्फेयर हो गया, और एक हेमिस्फेयर ये हमारा जो फ्रंट पे नजर आ रहा है ये हेमिस्फेयर है। तो इक्लिप्टिक और सेलेस्टियल इक्वेटर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक स्फेयर की जो बैक साइड है ना वहां पे, और एक ये जो हमें नजर आ रहा है जो फ्रंट साइड है यहां पे। इन दो पॉइंट्स पे इक्लिप्टिक और सेलेस्टियल इक्वेटर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड इक्विनॉक्स पॉइंट। इन दो पॉइंट्स को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स पॉइंट कहते हैं, या इनको इक्विनॉक्टिकल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, मीन ये जो फ्रंट है देन इट इज कॉल्ड दी वर्नल इक्विनॉक्स, इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, या फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज इसको कहते हैं। और बैक साइड पे जो इंटरसेक्टरी पॉइंट है दैट इज कॉल्ड दी एटोमनल इक्विनॉक्स, या इसको एटोमनल इक्विनॉक्स कहते हैं, या फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। दिस इज कॉल्ड दी वर्नल इक्विनॉक्स या फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। ये जो है ये एटोमनल इक्विनॉक्स है या फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा है। ठीक है, मोस्टली वर्नल इक्विनॉक्स जो है दैट इज द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। मीन हमारी जो पाकिस्तान कंट्री है, जब सन वर्नल इक्विनॉक्स पे आ जाए तो स्प्रिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और जब सन जो है एटोमनल इक्विनॉक्स पे आ जाए तो ऑटम सीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड रिमेंबर ये जो नाइट एंड डे का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है और लॉन्ग होता है, ये भी इस इक्लिप्टिक के साथ डिपेंड है। ठीक है, सी हम यहां पे कहीं पे है, ठीक है, तो जब सन वर्नल इक्विनॉक्स से आगे आना शुरू हो जाए तो क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू द ड्यूरेशन ऑफ नाइट। और जब सन जो है एटोमनल इक्विनॉक्स पोजीशन पे होता है तो उससे आगे जो है फिर हमारे रीजन में ड्यूरेशन ऑफ नाइट जो है वो इंक्रीज होता है और ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स हैं। एंड रिमेंबर, जब सन इस पॉइंट पे हो, एग्जैक्टली इस वर्नल इक्विनॉक्स पॉइंट पे हो, तो ड्यूरेशन ऑफ डे और ड्यूरेशन ऑफ नाइट जो है वो इक्वल होता है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड ड्यूरेशन ऑफ नाइट इक्वल होता है। इन वर्नल इक्विनॉक्स जो है दैट अकर्ड एट 21 मार्च एवरी ईयर। 21 मार्च को सन जो है वो वर्नल इक्विनॉक्स पोजीशन पे होता है, और 22 सितंबर को सन जो है वो एटोमनल इक्विनॉक्स पोजीशन पे होता है। तो 22 सितंबर और 21 मार्च ड्यूरेशन ऑफ नाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ डे जो है ये इक्वल होते हैं। ठीक है, जब सन जो है इससे आगे आ जाए, इसका जो पाथ है, मीन जब इस पॉइंट पे पहुंच जाए, सो दैट इज दी अगेन एक्सट्रीम पॉइंट, और एक ये एक्सट्रीम पॉइंट है। सो पर और रीजन हम जो है मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है ना,
तो जब सन एक्सट्रीम इस पोजीशन पे आ जाए तो हमारा जो हेमिस्फीयर है या क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ डे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ड्यूरेशन ऑफ नाइट। ठीक है। सिमिलरली जब सन इस पॉइंट पे आ जाए, इस एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाए, तो फिर हमारा जो क्वाड्रेंट है, पाकिस्तान कंट्रीज जो है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ डे ज्यादा होते हैं और ड्यूरेशन ऑफ नाइट, सॉरी, ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो शॉर्ट होते हैं और ड्यूरेशन ऑफ नाइट जो है वो ज्यादा होते हैं। एंड दीज टू पॉइंट्स, दीज टू एक्सट्रीम पॉइंट्स आर कॉल्ड द सोलेस्टिक पॉइंट्स। ठीक है। तो जब सन जो है वो इस सोलेस्टिक पे हो, दैट इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिक पॉइंट। और सन एग्जैक्टली जो इस एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है ये 22 जून को होता है, 22 जून को। और इस दिन डे जो है वो लॉन्गेस्ट डे होता है और नाइट शॉर्टेस्ट होता है। और जब सन इस एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, दैट इज कॉल्ड द विंटर सोलेस्टिक। ठीक है। और ये 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर के, जिसमें नाइट का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम होता है और डे का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है। सो दिस पाथ विच इज फॉलोड बाय द सन, मीन अपेरेंटली हमें इस तरह नजर आ रहा होता है कि सन जो है वो मूव हो रहा है, बट एक्चुअली अर्थ इज रोटेटिंग या एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग, जिससे अपेरेंटली हमें ये नजर आ रहा है कि सन जो है वो एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो कर रहा है थ्रू आउट द ईयर। सो दिस पाथ इज कॉल्ड द एक्लिप्टिक। और ये सेलेस्टियल इक्वेटर से 23.5 डिग्री पे ओब्लिक्विटी पे है। 2 पॉइंट पे ये उसके साथ इंटरसेक्ट होता है। दीज आर कॉल्ड द इक्विनॉक्स पॉइंट, वर्नल इक्विनॉक्स एंड एटॉर्नल इक्विनॉक्स। और 2 पॉइंट पे ये एक्सट्रीम होता है, एक को समर सोलेस्टिक कहते हैं और एक को विंटर सोलेस्टिक कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक टर्म है हमारे पास सेलेस्टियल मेरिडियन। ओके, सो दैट इज अ ग्रेट सर्कल। रिमेंबर, 2 टर्म्स हम यूज करते हैं, एक ग्रेट सर्कल है, एक स्मॉल सर्कल है। सो ग्रेट सर्कल आर दो सर्कल whose radius will be equal to the radius of the sphere. ठीक है। So celestial meridian is a great circle in which the plane is passing through the celestial pole. देखें, ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड एक्सेस ऑफ द अर्थ है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब अराउंड द स्फीयर आप इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लें कि इन 2 पॉइंट से पास हो जाएं, दैट विल बी कॉल्ड द सेलेस्टियल मेरिडियन। If we draw a great circle around the celestial sphere passing from the celestial poles, it will be called celestial meridian. ठीक है। एक हमारे पास है मेरिडियन। अगेन, हम अगर सिर्फ अर्थ को एज अ स्फीयर कंसिडर कर लेना, तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। ठीक है। नाउ सपोज अगर यहां पे एक पॉइंट है, एक ऑब्जर्वर है या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो नाउ अ ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू जीनत, नेदर एंड पोल। ठीक है, मीन ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये नेदर पॉइंट होगा। एग्जैक्टली इसकी बिलो यहां पे हमारे पास नेदर पॉइंट होगा। अब इस तरह एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें अराउंड द अर्थ कि इन 4 पॉइंट से पास हो जाए, इसको हम जनरली मेरिडियन कहते हैं। या दैट इज अ वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू जीनत, नेदर एंड पोल पॉइंट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वर मेरिडियन। ठीक है। अगेन देखिए, सपोज अगर यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ये उसका एक्सटेंड कर ले तो ये नेदर पॉइंट हो जाएगा, नीचे की तरफ एक्सटेंड कर ले तो ये नेदर पॉइंट हो जाएगा। अब इस तरह एक सर्कल आप ड्रॉ कर लें कि इस पॉइंट से पास हो जाए, पोल से पास हो जाए, नेदर से पास हो जाए और पोल से पास हो जाए। इन ड्रॉ अ ग्रेट सर्कल अराउंड द सेलेस्टियल स्फीयर passing from the poles point
and zenith and nether points, it will be called the meridian. ठीक है, एक हमारे पास एक्सटेंडेड मेरिडियन है जो इक्वेटर को परपेंडिकुलर होता है. देखें, मीन अगर ये एक्सिस ऑफ द अर्थ है ना, अगर इस एक्सिस ऑफ द अर्थ को अराउंड द अर्थ हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, इसको हम इक्वेटर कहते हैं. अब इस इक्वेटर को परपेंडिकुलरली एक ग्रेट सर्कल हम ड्रॉ कर लें अराउंड द अर्थ, मीन कि वो दो पोल से पास हो जाएं और इस तरह एक वर्टिकल सर्कल आप ड्रॉ कर लें, तो इसको हम इंटरनेशनल मेरिडियन कहते हैं, या प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या इंटरनेशनल डे लाइट उसको कहते हैं. ठीक है. When we have the great circle, so all those great circle passing through zenith nether are called vertical circle. ये मीन अगर आपके पास एक ऑब्जर्वर है ना अर्थ सरफेस के ऊपर, तो एग्जैक्टली उसकी ऊपर जो लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीनत लाइन कहते हैं. नीचे जो होता है उसको हम नेदर लाइन कहते हैं. अब इस तरह एक सर्कल आप ड्रॉ कर लें कि ये कोई भी ग्रेट सर्कल आप ड्रॉ कर लेना अराउंड दी सेलेस्टियल स्फीयर के जीनत और नेदर लाइन से पास हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड दी वर्टिकल सर्कल. एक मेरिडियन है, मेरिडियन जो है इट विल बी पास्ड थ्रू द पोल्स पॉइंट, और एक वर्टिकल सर्कल है इट विल बी पास्ड थ्रू द जीनत नेदर लाइन. ठीक है. When we have the prime vertical, so the vertical circle perpendicular to the observer meridian is called prime vertical. Yeah, the vertical circle which passes through the east and west point of horizon, it is at right angle to the meridian of the place या observer. यहाँ पे देखें, सपोज अगर ये हमारे पास अर्थ है, ऑब्जर्वर यहां पे है, ठीक है, यहां पे ऑब्जर्वर है, तो अगर एक ग्रेट सर्कल हम ड्रॉ कर लें अराउंड द अर्थ कि ये ऑब्जर्वर से पास हो जाए और फोल से पास हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मेरिडियन कहेंगे. इसको क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड मेरिडियन. प्राइम वर्टिकल क्या है? दैट इज द सर्कल परपेंडिकुलर टू द ऑब्जर्वर मेरिडियन. अब ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ना, ग्रेट सर्कल अराउंड द अर्थ, जो ऑब्जर्वर की पॉइंट से और पोल से इस तरह पास हो रहा है ना, दोनों पोल से पास हो रहा है, ये मेरिडियन हो गया. अब इस सर्कल को परपेंडिकुलर एक और सर्कल आप ड्रॉ कर लें कि इस सर्कल को देखिए, एक सर्कल ये हो गया ना, इसको परपेंडिकुलर एक और सर्कल ड्रॉ कर लें around the earth, that will be vertical circle. ठीक है. अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है लैटिट्यूड. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड कि सपोज अगर ये हमारे पास पूरा एक अर्थ जो है एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, सो ये अर्थ का नॉर्थ पोल होगा और नीचे हमारे पास साउथ पोल होगा. इन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें, इट विल बी कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को अराउंड द अर्थ अगर हम ये ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, सो इट विल बी कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इक्वेटर. अराउंड द अर्थ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक सर्कल ड्रॉ कर लें, ये क्या होगा? ये इक्वेटर होगा. अब इस इक्वेटर को परपेंडिकुलर एक मेरिडियन ड्रॉ कर लें. मेरिडियन क्या होगा कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से पास हो जाएं और इक्वेटर को परपेंडिकुलर हो, सो दैट विल बी कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, या दैट विल बी कॉल्ड द इंटरनेशनल मेरिडियन. और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होगा, या ये हमारे पास सेंटर पॉइंट होगा. ठीक है. नाउ यहां पे अगर एक पॉइंट है, कहीं भी अर्थ सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, अब इस इक्वेटर से उस पॉइंट तक ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द लैटिट्यूड. अगेन देखें,
ये पूरा स्पेयर है, इस स्पेयर की मेट पे हमने एक ग्रेट हॉरिजॉन्टल सर्कल ड्रॉ किया हुआ है परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इक्वेटर हो गया हमारे पास ये। अब इस इक्वेटर को परपेंडिकुलर हमने एक मेरिडियन ड्रॉ किया हुआ है अराउंड द अर्थ। ये हमारे पास प्राइम मेरिडियन हो गया या इंटरनेशनल मेरिडियन हो गया। तो आप देखें ये जो इक्वेटर है ना, ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक ये अपर पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एक ये लोअर पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो हमारे पास इंटरनेशनल मेरिडियन है या इंटरनेशनल डे लाइन है या प्राइम मेरिडियन है, ये अर्थ को दो पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये राइट पोर्शन है, इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और एक ये लेफ्ट पोर्शन है, इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये पूरा इक्वेटर जो है एक ग्रेट सर्कल है ना, तो इसका 360 डिग्री एंगल होगा, 360 डिग्री एंगल होगा। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटर आ रहा है, इसका टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटर आ रहा है वो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली इक्वेटर से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस पॉइंट से उस साइड की जब जहां पे इक्वेटर टच कर रहे हैं वहां तक ये 180 डिग्री होगा, और इक्वेटर से साउथ पोल और उस साइड तक ये 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखें इक्वेटर से इस रेफरेंस पॉइंट से नॉर्थ पोल तक ये 90 डिग्री होगा। नॉर्थ पोल से उस साइड पे जो इक्वेटर के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है वो 90 डिग्री होगा। सिमिलरली इस पॉइंट से ईस्ट तक ये 90 डिग्री होगा। ईस्ट से बैक साइड पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरिडियन और इक्वेटर का, वहां तक 90 डिग्री होगा। सिमिलरली इस पॉइंट से वेस्ट तक 90 डिग्री होगा, और वेस्ट से बैक साइड की इंटरसेक्शन पॉइंट तक 90 डिग्री होगा। सो इस तरह अर्थ जो है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, नाउ अर्थ सरफेस पे कहीं भी अगर आपके पास एक पॉइंट हो, कहीं भी एक पॉइंट हो, उस पॉइंट को अगर हम नॉर्थ पोल के साथ ज्वाइन कर लें, साउथ पोल के साथ ज्वाइन कर लें, और अराउंड दी अर्थ इस तरह एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, मीन इस तरह एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें अराउंड द अर्थ कि वो पॉइंट से और दोनों पोल से पास हो जाए, सो दैट विल बी कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ द पॉइंट, मीन ये इस पॉइंट का मेरिडियन होगा। ठीक है। अब इस पॉइंट का जो मेरिडियन है ये इक्वेटर को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इक्वेटर को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इक्वेटर यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको अर्थ के सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, और पॉइंट को अर्थ के सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड, मीन इट इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। मीन अगेन देखें यहां पे ये पॉइंट है ना, तो इस तरह एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर ले अराउंड दी अर्थ के ये पोल से पास हो जाए और इस पॉइंट से पास हो जाए, सो दैट विल बी द मेरिडियन ऑफ दिस पॉइंट। अब ये मेरिडियन ऑफ द पॉइंट जो है ये इक्वेटर को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ ज्वाइन कर लें, और ये जो एक्चुअल पॉइंट है इसको सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ ज्वाइन कर लें, तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड द लैटिट्यूड ऑफ दिस पॉइंट। So latitude of a place or station is the angular distance measured from the equator toward the nearer pole, अगर साउथ साइड पे है या नॉर्थ साइड पे है। ठीक है। अच्छा, एक है हमारे पास को लेटिट्यूड। लेटिट्यूड जो है दैट इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। को लेटिट्यूड क्या है? दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल। सो पोल से इक्वेटर तक
ये टोटल कितना है 90 डिग्री। अब अगर आपके पास लेटीट्यूड थीटा हो तो कोलेटीट्यूड क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बिकॉज देखें पोल पॉइंट को आप सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, ठीक है, पोल को सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, और ये मेरिडियन इक्वेटर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, तो ये पूरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब अगर पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, तो इक्वेटर से पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये लेटीट्यूड हो जाएगा। अब पॉइंट से पोल तक ये जो डिस्टेंस है ये कोलेटीट्यूड होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक हमारे पास लॉन्गिट्यूड है। सो अब अगर ये पॉइंट है ना, ये इक्वेटर से इतने एंगुलर डिस्टेंस पे ये लेटीट्यूड होगा। नाउ इस पॉइंट से या इस तरह आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें, इस तरह आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें कि इस पॉइंट से पास हो जाएं और इक्वेटर को पैरेलल हो, मीन अराउंड द अर्थ इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लें कि इस पॉइंट से पास हो जाएं और इक्वेटर को पैरेलल हो। ठीक है, तो ये सर्कल क्या करेगा, प्राइम मेरिडियन को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। नाउ जिस पॉइंट पे प्राइम मेरिडियन इंटरसेक्ट हो रहा है इसको एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लें और ये पॉइंट एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लें, तो इनके दरमियान ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हमारे पास एक्सिस है ना अर्थ का, सपोज ये पॉइंट जो है दैट इज द पॉइंट एट विच दिस स्मॉल सर्कल इंटरसेक्टिंग द प्राइम मेरिडियन, और ये हमारे पास एक्चुअल पॉइंट है, तो इसको एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लें और इसको एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लें। इन दोनों के दरमियान ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा ये इस पॉइंट का लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। सो इट इज द एंगुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन either to the west side or to the east side, and the longitude of a place is the angular measure of the arc of the equator between the some primary meridian। अगेन देखें, अगर ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट है, तो इस तरह अगर हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर ले अराउंड द अर्थ की ये पोल से पास हो जाए और पॉइंट से पास हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं मेरिडियन ऑफ दिस पॉइंट। और एक हमारे पास क्या है प्राइम मेरिडियन है, तो ये जो पॉइंट का मेरिडियन है ये इक्वेटर को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और प्राइम मेरिडियन यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इन दो पॉइंट्स को सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ ज्वाइन कर लें, उनके दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी द लॉन्गिट्यूड ऑफ दिस पॉइंट। So it is the angular distance between the primary meridian and the meridian of the object। ठीक है, जो अगेन एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, एक हमारे पास है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है ये एक ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्टेंस होगा एंड द स्पेयर। सी अगर यहां पे ये अर्थ है ना, अर्थ एज अ सेंटर पॉइंट है, ये अराउंड हमारे पास ये जो है ये सेलेस्टियल स्पेयर है। सपोज यहां पे ऑब्जर्वर है तो ये जीनत लाइन होगा, ये नेदर लाइन होगा। नाउ अराउंड दी स्पेयर अगर हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, इसको हम सेलेस्टियल स्पेयर कहते हैं। सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, सन है, स्टार है या मून है, तो वो कहां पे होगा, वो सेलेस्टियल स्पेयर पे होगा ना, सेलेस्टियल स्पेयर की सरफेस पे होगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ वो कहां पे है, वो स्पेस पे है। तो सेलेस्टियल इक्वेटर से सन तक या इस ऑब्जेक्ट तक ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, वर्टिकल एंगुलर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। और इस ऑब्जेक्ट से जीनत तक
ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड को एल्टीट्यूड। इसको क्या कहते हैं? को एल्टीट्यूड कहते हैं। देखें, अगर ये जीनत लाइन है और सेंटर से सेलेस्टियल इक्वेटर तक एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। अब यहां पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, इक्वेटर से यहां तक अगर एक एंगल सपोज ए है, तो ये को एल्टीट्यूड क्या होगा? 90 माइनस ए। एंड रिमेंबर, को एल्टीट्यूड इज आल्सो कॉल्ड जीनत एंगल। सी, अगर आपके पास एक थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट, ठीक है, एंड सपोज थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप है वो एग्जैक्टली ऊपर आसमान के तरफ है, एग्जैक्टली ऊपर के तरफ है टेलीस्कोप, तो जीनत एंगल क्या होगा? 0 होगा। अब अगर आप सन को देख रहे हैं या स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो टेलीस्कोप को आपने इस तरफ रोटेट करना होगा, मीन टेलीस्कोप इस तरह हो जाएगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इस तरह होगा। तो ये जो एंगल आ जाता है हमारे पास, इसको हम जीनत एंगल कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल से, मीन अगर ये जीनत एंगल है, तो ये जो एंगल है इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। दैट इज एल्टीट्यूड, दैट इज जीनत एंगल, एंड जीनत एंगल इज आल्सो कॉल्ड को एल्टीट्यूड। जीनत एंगल को हम को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस एल्टीट्यूड, या को एल्टीट्यूड जो है दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, एक हमारे पास एजीम्यूथ है। सो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली किसी पॉइंट की बियरिंग फाइंड किया हो, बियरिंग क्या होता है? दैट इज एक्चुअली द एंगल व्हिच वी आर मेजरिंग विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ रेफरेंस लाइन। मीन जब हमारे पास एक कंपास होता है ना, तो जब नीडल ऑफ द कंपास अलोंग द नॉर्थ है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? रेफरेंस पॉइंट होता है। अब किसी भी पॉइंट की हम किसी भी पॉइंट की तरफ अगर हम ये रोटेट कर लेना, तो हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बियरिंग कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? बियरिंग कहते हैं। तो मोस्टली एस्ट्रोनॉमी में इसको हम एजीम्यूथ कहते हैं। ठीक है, एजीम्यूथ जो है दैट इज द एंगल बिटवीन द ऑब्जर्वर मेरिडियन एंड द वर्टिकल सर्कल, बिकॉज वर्टिकल सर्कल जो होगा दैट विल बी पासिंग फ्रॉम द, या दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग अस द नॉर्थ एंड साउथ एज अ रेफरेंस लाइन। अब देखें, यहां पे ये सन जो है ये एक इवनली बॉडी है, यहां पे ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब थियोडोलाइट इस तरह सेट कर लें, और थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप है वो नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ कर लें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टली थियोडोलाइट को रोटेट करेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल आएगा, ये जो बियरिंग आएगा, इसको हम एजीम्यूथ कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे? टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में ऊपर करेंगे सन के तरफ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये जो वर्टिकल एंगल आ रहा है दैट इज एल्टीट्यूड। ठीक है, रिमेंबर एक्चुअली स्क्रीन जो होता है ना, थियोडोलाइट का जो स्क्रीन है, उसमें हमारे पास ये एंगल आ जाता है। वो हमें जो रीडिंग दे देता है ना, वो इस रेफरेंस से देता है, वो हमें को एल्टीट्यूड देता है। फिर एल्टीट्यूड क्या होगा? दैट विल बी 90 माइनस को एल्टीट्यूड, या 90 माइनस जीनत एंगल। ठीक है, तो किसी भी इवनली बॉडी का जो एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ, इसको हम एजीम्यूथ कहते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल एंगल है विद रिस्पेक्ट टू द सेलेस्टियल स्फीयर, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट कुछ टर्म्स है। सी, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है, इसको हमने किस तरह कंसीडर की कि सपोज हमारे पास अर्थ सरफेस है, और एक्सिस ऑफ द अर्थ को अगर परपेंडिकुलरली हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर ले, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर को परपेंडिकुलरली अगर हम एक वर्टिकल सर्कल ड्रॉ कर ले, उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इक्वेटर से ये जो एंगुलर डिस्टेंस होता है इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और प्राइम मेरिडियन से ये जो हॉरिजॉन्टली एंगुलर डिस्टेंस है
इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं ऑन दी अर्थ सरफेस। अच्छा, अब अगर अर्थ को हम सेंटर पॉइंट कंसिडर कर लें और ऑल सेलेस्टियल बॉडीज को एक स्पेयर का सरफेस कंसिडर कर लें, सो देन वी कॉल्ड इट द सेलेस्टियल स्पेयर। सो एक्सिस को जब हम एक्सटेंड करते हैं, सो इसको हमारे पास सेलेस्टियल पोल कहते हैं। अब इस सेलेस्टियल पोल्स को या इस एक्सिस को अराउंड द स्पेयर अगर हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, सो वी कॉल्ड इट सेलेस्टियल इक्वेटर। इसको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल इक्वेटर कहते हैं। नाउ इस सेलेस्टियल स्पेयर में, इस सेलेस्टियल स्पेयर की सरफेस पे अगर एक स्टार हो या एक प्लेनेट हो, तो सेलेस्टियल इक्वेटर से ये जो एंगुलर डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द डिक्लिनेशन। जिस तरह अर्थ सरफेस पे एक पॉइंट है ना, इक्वेटर से ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। तो पूरी सेलेस्टियल स्पेयर में हमारे पास अगर एक स्टार हो तो सेलेस्टियल इक्वेटर से ये जो एंगुलर डिस्टेंस होगा इसको डिक्लिनेशन कहते हैं। मीन द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम सेलेस्टियल इक्वेटर। जिस तरह हमारे पास एक वेल नोन स्टार है, आर्कटुरस स्टार है, फोर्थ बिगेस्ट स्टार है, वो कहां पे होगा? वो सेलेस्टियल स्पेयर के सरफेस पे होगा ना। सपोज सेलेस्टियल स्पेयर की सरफेस पे यहां पे है फॉर एग्जांपल, तो ये सेलेस्टियल इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे है? मीन इस स्टार को आप अर्थ के साथ ज्वाइन कर लें। अर्थ क्या है? सेंटर पॉइंट है। और इस सेलेस्टियल बॉडी जो है ना, इसका ये सेलेस्टियल मेरिडियन इक्वेटर को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको अर्थ के साथ ज्वाइन कर लें, तो ये जो एंगल है दैट इज द डिक्लिनेशन। मीन अर्थ की ऊपर हम इसको लेटीट्यूड कहते हैं और सेलेस्टियल स्पेयर के ऊपर हम इसको डिक्लिनेशन कहते हैं। तो ये डिक्लिनेशन हो गया ना। तो फिर पोल से ये जो डिस्टेंस है दैट इज को डिक्लिनेशन। तो को डिक्लिनेशन क्या होगा? दैट विल बी द कंप्लीमेंट ऑफ डिक्लिनेशन। सो अगर डिक्लिनेशन हमारे पास सिग्मा है तो को डिक्लिनेशन क्या होगा? इट विल बी 90 माइनस दिस वन। ठीक है, जिस तरह हमारे पास लेटीट्यूड है ना, एक हमारे पास को लेटीट्यूड है। जो अगर लेटीट्यूड हमारे पास 30 डिग्री हो तो को लेटीट्यूड क्या होगा? 60 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर यहां पे हमारे पास 30 डिग्री डिक्लिनेशन है तो को डिक्लिनेशन क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, एक हमारे पास है हॉवर एंगल। So the hover angle of a heavenly body is the angle between the observer meridian and the declination circle passing through the body. अब देखें यहां पे ये अर्थ है, ये पूरी सेलेस्टियल स्पेयर का सेंटर पॉइंट है। अब यहां पे हमारे पास ये एक स्टार है। ठीक है, तो इस तरह हम अगर एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें अराउंड द सेलेस्टियल स्पेयर कि ये स्टार से और पोल से पास हो जाए, तो ये क्या होगा? दैट विल बी कॉल्ड द डिक्लिनेशन सर्कल। जिस तरह हमारे पास अगर अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो एक सर्कल हम इस तरह ड्रॉ करते हैं कि पोल से पास हो जाए और इस पॉइंट से पास हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं? मेरिडियन ऑफ दिस पॉइंट। अब अगर हमारे पास सेलेस्टियल स्पेयर में एक स्टार है और इस तरह हम एक सर्कल ड्रॉ कर ले कि वो स्टार और इन पोल से पास हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड द डिक्लिनेशन सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे ऑब्जर्वर है, तो अराउंड द अर्थ अगर हम एक लाइन एक सर्कल ड्रॉ कर ले कि वो ऑब्जर्वर से और पोल से पास हो जाए, वो क्या होगा? वो ऑब्जर्वर मेरिडियन होगा। अब उस ऑब्जर्वर मेरिडियन को अगर हम यहां पे प्रोजेक्ट कर लें पूरी सेलेस्टियल स्पेयर के ऊपर, तो दैट विल बी कॉल्ड द ऑब्जर्वर मेरिडियन ऑन द सेलेस्टियल स्पेयर। अब उस ऑब्जर्वर मेरिडियन और डिक्लिनेशन सर्कल के दरमियान ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है दैट इज कॉल्ड द
hour angle. ठीक है. So these were the different basic terminologies which are used in the field astronomy. Like we have discussed the celestial sphere, the zenith, nether point, celestial horizon, sensible horizon, and polar axis, celestial equator, terrestrial equator. We have discussed the celestial poles, ecliptic, okay, the celestial meridian, the prime meridian, yeah, vertical circles, the latitude, co-latitude, longitude, altitude, co-altitude, azimuth, declination, co-declination, and hour angle. Okay, so these are the basic terminologies. Before going into the mathematical or quantitative discussion on field astronomy, first you must have to know about these terminologies. Okay.